Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss about ethics in cross-cultural business, which is one of the important topic in cross-cultural management. So, in this video, firstly, we will understand about the cross-cultural ethics. So, let us understand. It is a branch of ethics philosophy. Cross-cultural ethics, also known as moral philosophy, and it is a branch of philosophy that addresses the questions about morality, that is, concepts such as good and bad, noble and the ignoble, right and wrong, justice and virtue, solving problems between disparate social groups or members. Social group may be diverse by nationality, religion, beliefs, values and etc. अब देखो क्रॉस कल्चरल एथिक्स के बारे में क्या बताया गया है कि ये इसको हम एथिक्स फिलॉसफी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये एक ब्रांच है फिलॉसफी की जो हमें इस बारे में बताती है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, बैड है, क्या आपकी नोबल चीज़ें हैं, क्या इग्नोबल है, ठीक है, एंड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. क्रॉस कल्चरल एथिक्स ये हमें बताते हैं, ठीक है. इट मीन्स कि ऐसे सॉल्यूशंस हमारी प्रॉब्लम्स के लिए ऐसे सॉल्यूशंस क्रॉस कल्चरल एथिक्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी वैल्यू बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है. इट मीन्स कि गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, नोबल, ignoble. So these kind of things are provided by the cross cultural ethics. नेक्स्ट एक लाइन में डिफाइन किया है कि हर एक सोशल ग्रुप आपका डिफरेंट होता है बाय देयर नेशनलिटी, रिलीजन, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड एट्सेट्रा, ठीक है. और यही सारी चीज़ें जो हैं वो उस सोशल ग्रुप का एक कल्चर रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है ये चीज़. सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now, in cross-cultural ethics, we can understand about this influence of culture on business ethics. So, for understanding this thing, we have to understand the concept of enculturation and acculturation. Enculturation refers to the process by which humans learn the rules, customs, skills and values to participate in a society. In other words, no one is born with कल्चर. इट मीन्स एनकल्चरेशन आपकी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ह्यूमंस लर्न करते हैं कुछ रूल्स को, कस्टम्स को, स्किल्स को और वैल्यूज़ को, और ड्यू टू विच दे विल पार्टिसिपेट इन द सोसाइटल इवेंट्स. एंड अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल कल्चर के साथ बॉर्न नहीं होता है, ठीक है, बट जब वो बॉर्न होता है तब उस सोसाइटी में कैसा कल्चर है वो उस कल्चर को क्या करता है, एक्वायर्ड करता है, ठीक है. इसीलिए हम ये भी बोलते हैं एनकल्चरेशन इज़ द एक्वाइजेशन ऑफ एनी सोसाइटीज़ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. मीन्स हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है. क्लियर है ये चीज़. नेक्स्ट वन इज़ एक्कल्चरेशन. Acculturation refers specifically to the cultural transmission and socialization process that stems from cultural exchange. The effects of this blending of cultures appear in both the native culture and the host culture. Acculturation आपकी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कल्चर ट्रांसमिट होता है फ्रॉम योर कल्चर टू द अदर कल्चर, ठीक है. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स होती है और वो ब्लेंडिंग हमें दोनों कल्चर्स में देखने को मिलेंगी, जो हमारा एक ओरिजिनल कल्चर होगा और जो हमने अडॉप्ट किया है कोई नया कल्चर, ठीक है, उसको हम होस्ट कल्चर भी बोलते हैं. दीज आर टू कंसेप्ट्स विच helps us to understand the influence of culture on business ethics. Now, next slide is conditions that affect the relationship between business and
culture. Now there are basically two conditions that affect the relationship between business and culture. First condition is that business is not culturally neutral. It means business culturally neutral नहीं है. Means हर एक business का क्या है, अपना एक culture है, and it displays a mindset that is Western and primarily English speaking and is reinforced by the enculturation process of Western nations, which tends to emphasize individualism and competition. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये माइंडसेट बिजनेस के लिए आजकल है कि बिजनेस में कौन सा कल्चर फॉलो हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर. ठीक है, एंड बेसिकली कहाँ पे फोकस किया जा रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग पे. और इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ ये भी फोकस किया जा रहा है कि हम कैसे compete करेंगे मार्केट में. ठीक है, और दूसरी चीज़ है इंडिविजुअलिज्म. मीन्स इंडिविजुअलिज्म का मतलब है यहाँ पे कि हर एक इंडिविजुअल क्या करेगा, अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज़ दैट the second condition that affects the relationship between business and culture is more complex because it reflects an evolving view of business in which the purpose is not solely generating wealth but also balancing profitability and responsibility to the public interest and the planet. सेकेंड कंडीशन बोलती है कि रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड कल्चर क्या है, आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. बिकॉज ये क्या होता रहता है, टाइम टू टाइम इवॉल्व होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं इसमें. एंड जिसमें आपका पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि आपको क्या करना है, वेल्थ जनरेट करनी है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, बट हमें बैलेंस भी करना है अपने प्रॉफिट को और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द सोसाइटी. ठीक है, या फिर जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी पीपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं या जिस सोसाइटी में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमने बैलेंस करना है अपने प्रॉफिट अर्निंग के साथ. क्लियर है. तो ये दो कंडीशंस हैं जो आपकी बताती हैं कि बिजनेस और कल्चर का रिलेशनशिप जो है वो कैसे अफेक्ट होता है. नेक्स्ट है आपका स्टेप्स टू अवॉइड कन्फ्यूज़न अबाउट एथिक्स. अब कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके हमारे एथिक्स के बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. फर्स्ट है आपका डेवलप अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड सेट ऑफ कोर वैल्यूज़ एज द बेसिस फॉर ग्लोबल पॉलिसीज़ एंड डिसीजन मेकिंग. Company must align its decision with its values like honesty, dignity, responsibility and respect for others. It means कंपनी को एक कोर वैल्यूज़ का सेट जो है वो बनाना है. ठीक है, और उसको अपने जो भी डिसीज़न मेकिंग करनी है वो किस बेसिस पे करनी है, अपनी कुछ वैल्यूज़ के बेसिस पे करनी है. वो वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी, डिग्निटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स. The second step is train international employees to ask questions that will help them make business decisions that are both culturally sensitive and flexible within the context of the core values. It means जो international employees हैं, जो बाहर के employees हैं host country के, उनको हमें train करना है so that कि वो अपनी जो business decisions हैं वो कैसे ले सकें culturally sensitive. Means ऐसे डिसीजंस होने चाहिए उनके जो कि हमारे किसी भी टाइप के कल्चर को हार्म ना करें. Then after, the third step is company should establish an approach that is flexible but robust with guiding the employees to exercise responsibility and make a good professional judgment. It means कंपनी को एक अप्रोच establish करनी है जो कि कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल. और फ्लेक्सिबल मीन्स कि इमीडिएट अगर कोई इवेंट हो रहा है, इमीडिएट कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, देन द एम्प्लॉयज़ कैन हैंडल दैट प्रॉब्लम. ओके, एंड दे कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम एंड मेक अ गुड प्रोफेशनल जजमेंट. उस प्रॉब्लम को जज कर सके और सॉल्व कर सके. देन आफ्टर, द
Next step is clients and co-workers may have a different perspective on ethics and proper behavior than those to which you are accustomed. It means आपके जो क्लाइंट्स होंगे, आपके जो कोवर्कर्स होंगे, उनका एथिक्स के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है एंड प्रॉपर बिहेवियर हो सकता है दैन दोज टू विच यू आर अकस्टम्ड. मीन्स जिस बिहेवियर को या जो एथिक्स आप यूज़ कर रहे हो, बेसिकली आप उनके जिनके साथ अवेयर हो या आप यूज्ड टू हो, मीन्स डेली बेसिस पे आप उनका यूज़ कर रहे हो. इट मे बी पॉसिबिलिटी दैट योर को वर्कर्स एंड क्लाइंट्स मे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर दैट ethics. Then after, the last step is by helping your organization appreciate the differences between cultures, you will help your employees better understand how to best approach their work as your company scales globally. It means हमें organization को help करना है और अगर वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको अप्रिशिएट करना है सो दैट कि हमारे एम्प्लॉयज़ बेटर अंडरस्टैंड करें कल्चरल डिफरेंसेस को, और साथ के साथ कि हम कैसे अपनी इस कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए कंपनी के गोल्स को अचीव कर सकें. ओके, एंड कंपनी का जो एक स्केल है उसको भी हम ग्लोबली एक्सटेंड कर सकें. So this is all about your cross-cultural ethics in business. I hope you will understand about this. So thank you for watching my video and keep watching my channel. Thank you.